हेलो एवरीवन। आज की जो स्टोरी है इसका नाम है बीरबल्स खिचड़ी, बीरबल की खिचड़ी। तो यहाँ पर ये सिंपल और आसान से स्टोरी है, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग जानने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको रीड करूँगी और उसके बाद में इसका मैं ट्रांसलेशन करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बीरबल्स खिचड़ी, इंग्लिश में ये जो लास्ट में RI लिखा है इसको हम DI भी कर सकते हैं। इंग्लिश में हम प्रोनाउंस करेंगे खिचड़ी और आप खिचड़ी भी बोल सकते हैं। बीरबल्स खिचड़ी। ऑन अ कोल्ड विंटर डे अकबर एंड बीरबल took a walk along the lake. A thought came to Birbal that a man would do anything for money. He expressed his feelings to Akbar. Akbar then put his finger into the lake and immediately removed it because he shivered with cold. Akbar said, I don't think a man would spend an entire night in this cold water of this lake for money. Birbal replied, I am sure I can find such a person. Akbar then challenged Birbal into finding such a person and said that he would reward the person with 1,000 gold coins. Birbal searched far and until he found a poor man who was desperate enough to accept the challenge. The poor man entered the lake and Akbar had guards posted near him to make sure that he really did as promised. The next morning, the guards took the poor man to Akbar. Akbar asked the poor man that he had indeed spent the night in the lake. The poor man replied that he had. Akbar then asked the poor man how he managed to spend the night in the lake. The poor man replied that there was a street lamp nearby and he kept his attention affixed on the lamp and away from the cold. Akbar then said that there would be reward as the poor man had survived the night in the lake. By the warmth of the street lamp, the poor man went to Birbal for help. The next day, Birbal did not go to court. The king wondering where he was, sent a messenger to his home. The messenger came back saying that Birbal would come once he
once his khichdi was cooked. The king waited hours, but Birbal did not come. Finally, the king decided to go to Birbal's house and see what he was up to. He found Birbal sitting on the floor near some burning twigs and a bowl filled with khichdi rice hanging 5 feet above the fire. The king and his attendants couldn't help but laugh. Akbar then said to Birbal, "How can the khichdi be cooked if it's so far away from the fire?" Birbal answered, the same way the poor man received heat from a street lamp that was more than a furlong away. The king understood his mistake and gave the poor man his reward. A small ray of hope is enough to inspire the one who is ready to work hard to turn his dream into a reality. तो यहाँ पर इस स्टोरी की रीडिंग कंप्लीट होती है. अब हम इस स्टोरी का ट्रांसलेशन करेंगे. स्टोरी का नाम है बीरबल्स खिचड़ी या फिर आप खिचड़ी, दोनों तरीके से लिख सकते हैं. लास्ट में RI भी लिख सकते हैं और लास्ट में DI भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है. बीरबल्स यहाँ पर लिखा है, S लगा हुआ है. इसका मतलब है कि बीरबल की, ना कि बहुत सारे बीरबल की खिचड़ी. बहुत ही सिंपल आसान स्टोरी है, लेकिन पर्पस या उद्देश्य यही है कि यहाँ पर काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे. सिंपल होंगे लेकिन उन वर्ड्स के मीनिंग्स हमको जानने को मिलेंगे और आगे तक वो वर्ड्स के मीनिंग्स, वो इंग्लिश के वर्ड्स हमारे काम आएंगे. ऑन अ कोल्ड विंटर डे. कोल्ड विंटर, कोल्ड मतलब होता है ठंडा और विंटर का मतलब होता है सर्दी. तो कोल्ड विंटर मतलब ठंडा मौसम या कड़ाके की ठंड, यानी कि ठंडे मौसम के दिन. ठीक है, ठंडे मौसम के दिन. ऑन मतलब किस दिन, ठंडे मौसम के दिन. जब दिन की बात होगी, डे की बात होगी, तब हम ऑन का यूज़ करते हैं. प्रीपोजिशन है ये. अकबर एंड बीरबल टुक अ वॉक अलोंग द लेक. अकबर और बीरबल टुक अ वॉक. अ वॉक, टुक मतलब होता है लेना. ठीक है, पास्ट फॉर्म है टेक की. टुक अ वॉक अलोंग. अलोंग का मतलब, जैसे मैंने यहाँ पर मीनिंग्स तो वैसे काफ़ी सारे हिंदी में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि अलोंग का मतलब के किनारे. अ वॉक या वॉक टहलना या सैर करना, और द लेक, लेक मतलब झील. अकबर और बीरबल झील के किनारे टहल रहे थे या फिर सैर कर रहे थे. अ थॉट केम टू बीरबल दैट अ मैन वुड डू एनीथिंग फॉर मनी. एनीथिंग मतलब कुछ भी. अ थॉट मतलब एक विचार. के मतलब आया, किसको, बीरबल को. की दैट अ मैन वुड डू एनीथिंग फॉर मनी, कि एक जो आदमी है, इंसान मतलब आदमी है, वो किसके लिए, फॉर मनी, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है. अ थॉट केम टू बीरबल, एक विचार बीरबल के मन में आया कि आदमी पैसे के लिए, मनी के लिए कुछ भी कर सकता है. ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स टू अकबर. अब उसने, अब ही का मतलब यहाँ पर वह नहीं है, हमको इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका हिंदी में मतलब निकालना है. तो यहाँ पर ही यानी उसने. ठीक है, ही उसने. एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त किया अपनी क्या, हिज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को. हिज यानी उसकी, उसका, उसके, तो यहाँ पर यूज़ होगा उसकी. ठीक है,
ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स टू अकबर। तो उसने अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को अकबर के सामने एक्सप्रेस्ड किया या अकबर को एक्सप्रेस्ड किया, व्यक्त किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि अकबर देन पुट हिज फिंगर इनटू द लेक एंड इमीडिएटली रिमूव्ड इट बिकॉज ही शिवर्ड विद कोल्ड। अकबर देन यानी फिर, पुट हिज फिंगर, फिंगर को पुट डालना, इनटू किस में, झील में, इनटू द लेक झील में, एंड इनटू में, एंड इमीडिएटली, और इमीडिएटली मतलब तुरंत, रिमूव्ड मतलब हटा लेना, इट यानी फिंगर को, इट यहाँ पर कौन है, फिंगर, अपनी फिंगर को तुरंत ही उसने हटा लिया। बिकॉज ही शिवर्ड मतलब कांपना। ठीक है, और यहाँ पर ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है तो कांपा। विद कोल्ड, किससे, ठंड से, विद कोल्ड। अकबर then put his finger into the lake and immediately removed it because he shivered with cold. अकबर ने फिर अपनी जो उंगली थी वो झील के अंदर डाली और तुरंत ही उसको वहाँ से हटा लिया, क्योंकि उसकी उंगली कांप रही थी ठंड से, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। ठीक है, अकबर सेड, अकबर ने कहा, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि अ मैन, की एक आदमी, वुड स्पेंड, अब वुड का पास्ट में अगर हम इच्छा को जाहिर करते हैं तब हम वुड का यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे वुड के यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पर स्टोरी में जो यूज़ होगा वो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर इच्छा के लिए व्यक्त किया गया है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, कि अ मैन वुड स्पेंड एन एंटायर नाइट इन द कोल्ड वाटर ऑफ दिस लेक फॉर मनी, कि आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि एक आदमी, स्पेंड मतलब बिताना, व्यतीत करना, एन एंटायर मतलब पूरी, एंटायर का मतलब होता है पूरा, लेकिन यहाँ पर पूरा रात नहीं कहेंगे, पूरी रात, इन द कोल्ड वाटर, इस कोल्ड वाटर में, इन द में, ऑफ दिस लेक, इस झील के ठंडे पानी में, फॉर मनी पैसे के लिए, फॉर मनी मतलब पैसा, और फॉर के लिए, कि मुझे नहीं लगता कि एक आदमी पैसे के लिए अपनी पूरी रात इस ठंडे पानी के अंदर, इस ठंडे झील के इस ठंडे पानी में स्पेंड करेगा, बिताएगा। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया कि आई एम श्योर आई कैन फाइंड सच अ पर्सन, कि मुझे यकीन है कि मैं ऐसा, श्योर मतलब यकीन, आई कैन फाइंड सच अ पर्सन, कि मैं ऐसा, फाइंड मतलब ढूंढना, खोजना, ऐसा, सच, ठीक है, अ पर्सन ऐसा व्यक्ति मैं खोज निकाल सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ, इसका मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है। अकबर देन चैलेंज, फिर अकबर ने, देन मतलब फिर, अकबर ने चैलेंज्ड, चुनौती देना, चैलेंज्ड मतलब चुनौती देना, तो चुनौती दी बीरबल को, इनटू फाइंडिंग सच अ पर्सन, ऐसे पर्सन को, ऐसे व्यक्ति को खोजने की, फाइंडिंग खोजने की, एंड और सैड कहा कि दैट की ही वुड रिवॉर्ड, कि वह क्या देगा, इनाम देगा, वुड देगा, रिवॉर्ड यानी इनाम, द पर्सन विद 1,000 गोल्ड कॉइन्स, 1,000 सोने के सिक्कों का उसे रिवॉर्ड, इनाम देगा, उसे इनाम देगा या पुरस्कृत करेगा। बीरबल सर्च्ड फार एंड until he found a poor man who was desperate enough to accept the challenge. बीरबल सर्च मतलब ढूंढना या खोजना, फार का मतलब होता है बहुत दूर, या फिर आप कह सकते हैं दूर दूर तक, इस तरीके से आप जैसा भी सेंटेंस में यूज़ बैठ रहा है हिंदी का मीनिंग, वो ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यानी कि बीरबल ने ढूंढा, सर्च मतलब ढूंढना होता है, ढूंढना कहाँ कहाँ, बहुत दूर दूर तक बीरबल ने ढूंढा, एंड until he found, until मतलब जब तक, he found poor man, जब तक कि उसे ऐसा, and until he found a poor man who was desperate enough to accept the challenge, और तब तक ढूंढा कि उसे ऐसा पुअर मैन, ऐसा गरीब आदमी नहीं मिल जाए जो डेस्परेट हो, डेस्परेट मतलब
दुखी भी होता है, लेकिन यहाँ पर कि बेताब या बेकरार ना हो, मतलब उसे इस चीज़ के लिए डेस्परेट हो, इनफ हो, बेताब हो, इतना हो कि एक्सेप्ट कर ले वो चैलेंज को, एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले चैलेंज को, चुनौती को। तब तक उसने बहुत दूर दूर तक ढूंढा। द पुअर मैन एंटर्ड द लेक। अब गरीब आदमी ने क्या किया, एंटर्ड मतलब प्रवेश करना, किसमें किया, लेक के अंदर, झील में प्रवेश किया, मतलब इसको यहाँ पर मिल गया, बीरबल को ऐसा गरीब आदमी मिल गया। एंड अकबर हैड गार्ड, गार्ड मतलब पहरेदार, अकबर हैड गार्ड पोस्टेड, पोस्टेड मतलब तैनात करना, तो तैनात किए, नियर मतलब पास, हिम उसके, किसके, उस पुअर आदमी के पास में, टू मेक श्योर यह निश्चित करने के लिए, मेक श्योर निश्चित करना, दैट कि ही रियली डिड एज प्रॉमिस्ड कि उसने सच में अपना जो वादा है वो पूरा किया है या नहीं। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह द गार्ड्स जो पहरेदार थे टुक द पुअर मैन, टुक मतलब ले जाना, उस गरीब आदमी को किसके पास ले गए, अकबर के पास, टुक द पुअर मैन टू अकबर। अकबर आस्क्ड द पुअर मैन, अकबर ने गरीब आदमी से पूछा कि दैट ही हैड इंडीड, इंडीड वास्तव में, स्पेंट यानी बिताया, द नाइट इन द लेक, क्या वो रात उसने उस कहाँ पर, लेक में स्पेंड की, बिताई। द पुअर मैन रिप्लाइड दैट ही हैड, हाँ उसने कहा कि हाँ, रिप्लाइड जवाब दिया कि हाँ उसने ऐसा किया। अकबर दैन आस्क्ड द पुअर मैन, अकबर ने फिर उस गरीब आदमी से पूछा कि हाउ ही मैनेज्ड, मैनेज्ड मतलब उपाय या फिर आप कह सकते हैं प्रबंध, या कैसे बंदोबस्त किया, कैसे ये सब मैनेज्ड किया। टू स्पेंड यानी बिताना, द नाइट इन द लेक, कैसे उसने ये सब मैनेज किया या फिर बंदोबस्त किया, क्या तरीका लगाया उसने इस चीज़ के लिए, उसने पूछा। द पुअर मैन रिप्लाइड, अब उसने जवाब दिया कि दैट देयर वॉज अ, वॉज मतलब था, देयर वॉज अ स्ट्रीट लैम्प, कि एक स्ट्रीट लैम्प, स्ट्रीट मतलब गली, गली में जो लाइटें लगी होती है वो लैम्प, नियर बाय मतलब पास में, पास में एक स्ट्रीट लैम्प था। एंड और ही कैप्ट हिज अटेंशन अफिक्स्ड, अटेंशन मतलब ध्यान, ध्यान कहाँ पर, अफिक्स्ड, अफिक्स्ड मतलब लगाना, ध्यान लगाना, अटेंशन अफिक्स्ड ध्यान लगाना, कहाँ, ऑन द लैम्प, लैम्प के ऊपर लगाए रखा उसने अपना ध्यान। एंड अवे फ्रॉम द कोल्ड, और अवे मतलब यहाँ पर दिया है कि दूर, फ्रॉम से, कहाँ से, कोल्ड ठंड से, मतलब वो ठंडे में तो था, ठंड में था, उस लेक में ठंडा पानी था, लेकिन उसने अपना ध्यान जो स्ट्रीट लाइट का जो लैम्प होता है, स्ट्रीट का जो लैम्प था, स्ट्रीट में उस गली में जो लैम्प था उस पर उसने फिक्स्ड कर दिया। अकबर देन सैड देयर वुड बी मतलब होगा, सैड मतलब कहा, देन यानी फिर, रिवॉर्ड मतलब इनाम, एज द पुअर मैन हैड सर्वाइव्ड, पुअर मैन क्या हो गया, बच गया, द नाइट इन द लेक बाय द वार्मथ ऑफ द स्ट्रीट लैम्प, की स्ट्रीट लैम्प की लाइट से, गर्माहट से तो उसने अपने आप को बचा लिया। तो जो रिवॉर्ड है वो किस चीज़ का होगा, द पुअर मैन वेंट टू बीरबल फॉर हेल्प, अब जो पुअर मैन था, वेंट मतलब गया, किसके पास, बीरबल के पास, फॉर हेल्प मदद के लिए, फॉर के लिए, हेल्प मदद के लिए। द नेक्स्ट डे अगले दिन, बीरबल डिड नॉट गो टू कोर्ट, अगले दिन बीरबल कोर्ट नहीं गया। द किंग वंडरिंग, वंडरिंग मतलब सोचा या आश्चर्य हुआ, किंग को आश्चर्य हुआ कि वेयर ही वॉज, कि वह कहाँ था। सेंट यानी भेजा, अ मैसेंजर टू हिज होम, अब एक संदेशवाहक को, मैसेंजर को उसके घर भेजा, हिज यानी उसका या उसकी। द मैसेंजर केम बैक वापस आना, केम बैक मतलब वापस आना, वो जो मैसेंजर था संदेशवाहक वो वापस आया। सेइंग दैट बीरबल वुड कम वंस हिज खिचड़ी, खिचड़ी मतलब किसकी खिचड़ी थी वो, राइस की, चावल की, वॉज कुक्ड, कि बीरबल एक बार जब उसकी, वंस मतलब एक बार, जब उसकी वो चावल की जो खिचड़ी है वो पक जाएगी तब वो आएगा। द किंग वेटेड आवर्स बट, किंग ने इंतज़ार किया कई घंटों, बट बीरबल डिड नॉट कम, लेकिन बीरबल नहीं आया। फाइनली अंततः लास्ट में क्या हुआ कि द किंग डिसाइडेड, किंग ने तय किया, डिसाइडेड तय करना, तय किया कि टू गो टू बीरबल्स हाउस, द किंग डिसाइडेड टू गो टू बीरबल्स हाउस, कि उसने तय किया कि वो खुद बीरबल के घर जाएगा। एंड सी
सी मतलब देखा, एंड सी देखा, क्या देखा कि व्हाट ही वॉज अप टू, कि वो क्या कर रहा है, उसने देखा कि वो क्या कर रहा है। ही फाउंड बीरबल सिटिंग ऑन द फ्लोर, उसने पाया, ही यानी उसने, फाउंड मतलब पाया, कि बीरबल सिटिंग, बीरबल बैठा हुआ है, ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर, नियर यानी पास में, सम बर्निंग ट्विग्स और पास में कुछ जलती हुई, ट्विग्स मतलब टहनियाँ, जो पेड़ की जो टहनियाँ हैं, लकड़ियाँ वो है, एंड बर्निंग यानी जलती हुई, एंड अ बॉल एक जो प्याला है वो फिल्ड भरा हुआ है, विद खिचड़ी राइस, जो खिचड़ी है राइस की, चावल की, उससे, और हैंगिंग मतलब लटका हुआ है, हैंगिंग मतलब लटका हुआ, किससे, 5 फीट अबव द फायर, मतलब 5 फीट, अबव मतलब ऊपर, 5 फीट ऊपर लटका हुआ है वो बॉल, कटोरा। ये सब अकबर ने देखा। द किंग एंड हिज अटेंडेंट्स कुडंट हेल्प बट लाफ, जो किंग और उसके अटेंडेंट्स थे, हिज यानी उसके अटेंडेंट्स मतलब सेवक, कुडंट मतलब कुछ ना कर सकना, कुडंट यहाँ पर कुछ न कर सकना, हंसने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकते थे। अकबर देन सेड टू बीरबल, अकबर ने फिर बीरबल से कहा कि हाउ कैन द खिचड़ी बी कुक्ड इफ़ इट्स सो फार अवे फ्रॉम द फायर, कि कैसे ये खिचड़ी कुक्ड पकेगी यदि इट इज़ सो फार अवे, इतनी दूर है, फार अवे मतलब दूर, फ्रॉम द फायर, फ्रॉम मतलब से, किससे, फायर से, आग से। बीरबल आंसवर्ड, बीरबल ने उत्तर दिया कि द सेम वे द पुअर मैन रिसीव्ड हीट फ्रॉम अ स्ट्रीट लैम्प दैट वाज आल्सो फार अवे, कि इसी तरीके से कैसे वो गरीब आदमी रिसीव्ड यानी प्राप्त कर सकता है, हीट यानी गर्मी, फ्रॉम से, किससे, अ स्ट्रीट लैम्प से, गली की जो लाइट थी, लैम्प थी, उससे, दैट वाज आल्सो फार अवे, जो कि वो भी दूर थी। द किंग अंडरस्टूड, किंग अब समझा, हिज मिस्टेक अपनी गलती, उसकी गलती, एंड गेव द पुअर मैन हिज रिवॉर्ड, अब उसने जो पुअर मैन का, गेव यानी दिया, द पुअर मैन हिज रिवॉर्ड, पुअर मैन का रिवॉर्ड उसका उसने दे दिया। यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट होती है। स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है कि अ स्मॉल रे ऑफ होप, अ स्मॉल एक छोटी सी रे मतलब किरण, ऑफ होप आशा, होप मतलब आशा की किरण, इज़ इनफ मतलब काफ़ी है, टू इंस्पायर मतलब प्रेरित करना, द वन हु यानी उसको, किसको, जो, इज़ रेडी टू वर्क हार्ड, जो रेडी तैयार हो, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करने के लिए, टू टर्न हिज ड्रीम इनटू अ रियलिटी, अपने जो ड्रीम्स है, अपने जो सपने हैं उनको हकीकत में टर्न करने के लिए, बदलने के लिए, एक छोटी सी आशा की किरण ही काफ़ी है किसी को भी प्रेरित करने के लिए जो अपने कठिन परिश्रम से अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। यहाँ पर ये इसका सेंस है, मतलब है। तो यहाँ पर ये स्टोरी का ट्रांसलेशन भी कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।